now we are starting a new topic called differential calculus. Why we are stopping and starting new topic? Because if I ask you ki, what is the velocity, how do we define the velocity? Do anybody know how do we define the velocity? Or did we define it? Velocity हम लोगों ने अभी तक define की है कि नहीं की? Or anybody knows? Velocity, speed and sorry? With direction. With direction. So average velocity is also with the direction. Average velocity is also with the direction. So far we have defined average velocity, not the velocity. We have defined average speed, not the speed. We have defined average acceleration, not acceleration. Because velocity, speed and acceleration, they are the instantaneous value at one point of time. For that, in fact, they are defined as the rate of change of displacement or rate of change of velocity. So for that, we have to understand what is the meaning of rate of change, है ना? Meaning of rate of change जो है वो पढ़ना पड़ेगा. And और कैसे calculate करना है velocities, है ना? तो और acceleration means instantaneous value. उसके लिए हमें differential calculus करना पड़ता है. That is the branch of the math. That this will be those who have the math subject, they will be taught this differential calculus and integral calculus in a detail, because that covers almost say 1/3 of the entire syllabus of your maths of 11th and 12th. उसका 1/3 करीब जो है 60% of total course of 11th and 12th will be covered by this calculus part. Very useful part. So, but हमें अभी चाहिए, we need it now in this chapter itself. So I will be covering elementary, basic, the fundamentals of the differential calculus. ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग slope पढ़ते हैं, because differential calculus is nothing but slope, all about slope of the particular graph, है ना, curve. तो पहले slope पढ़ लेते हैं, है ना? तो how do we define the slope of any line or any curve? Suppose this is the line. ये line हमने green से draw की हुई है, ठीक है? ओके, इसको रेड कर लेते हैं. अपने पास लेजर कौन सा? ओके, ग्रीन है. ये लाइन ड्रॉ की हमने, तो विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. तो इसका स्लोप डिफाइन करना है. तो स्लोप ऑफ द एनी लाइन इज रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना? कोई लाइन का स्लोप हमें डिफाइन करना है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर कितना है और उसका बेस कितना है. तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस, ये इसको परपेंडिकुलर लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसा लिखते हैं ना, दिस इज परपेंडिकुलर. यहाँ पे लिखा मैंने परपेंडिकुलर को शॉर्ट में आई विल राइट इट लाइक दिस. ये सिंबल, ये राइट एंगल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया सर आर. तो परपेंडिकुलर को विल राइट लाइक दिस. दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी. बेस क्या है? ओ ए. तो किसी लाइन का रेशियो ऑफ perpendicular to the that slope is nothing. slope का सिंबल m रहेगा, मास का सिंबल भी m रहता है, स्लोप का सिंबल भी m रहता है. तो perpendicular upon base is nothing but tan theta. tan होता है ना, tangent of any angle. तो theta क्या है? theta is the angle made by the line with the positive x axis. तो अगर एंगल बढ़ेगा, सपोज पहले लाइन ऐसी है, एंगल इज लेस, slope is less. when line is further increasing the angle, और angle increase करेंगे और increase करेंगे, slope is increasing. horizontal line will have zero slope, है ना? गार्डन में भी देखते हैं ना slope, वो स्लाइडिंग जो रहता है ना, slope. तो उसका एंगल जो है जितना ज्यादा होगा ज्यादा slope होगा. horizontal plane or horizontal line will have zero slope. vertical line will have infinite slope. ठीक है? तो slope is defined as ratio of perpendicular to the base. It is also equal to tan theta. तो स्लोप का जो है सिंबल m है, which is tan theta, which is y by x. Now suppose लाइन जो है कर्व लाइन है, it is not the straight line, it is not having the constant angle. कर्व लाइन, एंगल चेंज हो रहा है. यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे थीटा 1 है इनिशियल, देन थीटा 2 है, फाइनली यहाँ पे थीटा 3 हो जाएगा.
ठीक है, तो स्लोप इज चेंजिंग, कर्व लाइन का स्लोप चेंजिंग है, तो वहां पे हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे, वी विल टेक द, जैसे पॉइंट पी पर हमें स्लोप चाहिए ना, पॉइंट पी पर स्लोप चाहिए, तो वहां पर हम एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, तो वाट एवर द एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, फिर से डेफिनेशन वही रहेगी टेन थीटा, बट यहाँ पर y बाई एक्स नहीं लिखेंगे, विल टेक द वेरी स्मॉल, वहां पे पॉइंट पी पे ऐसे ले लेंगे छोटा सा ट्रायंगल, ये dy हो जाएगा, इधर से dx हो जाएगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया, इसकी स्लाइट नैरो स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस dx है, और इधर भी जिसकी थिकनेस dy है, तो एट दैट पॉइंट dy बाई dx, बिकॉज दे आर चेंजिंग नाउ, है ना, या फिर हमें इतना पता लग जाए y बाई एक्स के टर्म में लिखना है, ये वैल्यू पता लग जाए और x यहाँ तक ही रहेगा, फिर इट विल बी अप टू हियर ओनली, नॉट अप टू हियर, तो बट अगर हमें नहीं पता है वो, तो हम लोग उस लोकल पॉइंट पर dy बाई dx निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकाला जाता है dy बाई, दैट इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशियल कैलकुलस, वही हमने पढ़ने वाले हैं, dy बाई dx कैसे निकाला जाता है, थीटा दिया है तो डायरेक्ट टेन थीटा, अगर थीटा पता है तो डायरेक्ट वी विल बी राइटिंग द स्लोप, है ना, स्लोप इज राइट, बट हमें एंगल नहीं दिया है, फंक्शन दिया होगा y का इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा तुम्हें, अभी मैथ्स में पढ़ते हैं ना फंक्शन, तो आइदर थीटा इज नोन और dy by dx at that particular point, or y by x if angle is not changing, तो y by x will do, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, यहाँ पे d का स्मॉल चेंज है, देखो earlier also in the units and dimension we have discussed this, delta means change or d means, delta means it is large change, finite something, काउंटेबल चेंज, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और d is very very small change which is very difficult to measure even, तो ये d है ना, d we are dealing with a small d, तो इसको मेजर तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग we will be what is called mathematically we can calculate. थीटा क्या है, देखो थीटा इज द एंगल, ऑलवेज थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप का जो टेन थीटा आता है, अगर टेन थीटा के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, तो थीटा विल बी द एंगल मेड बाय द लाइन, पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर कर्व, लाइन और कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स स्लोप के बारे में. यहाँ से छोटे से पार्ट में dy by dx लेते, इतने से पार्ट में. If you have any difficulty, you ask, unmute and ask. Done.
Okay. Question based on these are direct. Suppose if I give you find the slope of line making following angles with positive x-axis 0, 30, 90, 135, 180. So these may not be known to you now. अगर तुम्हें ये नहीं है तो ये छोड़ दो. I'll just cover this part later. More than 90 degree angle के लिए फार्मूला होता है 90 plus theta का फार्मूला. I will teach you further. इसी चैप्टर में इसी continuation will be there. How to find out the angle. फार्मूला मतलब लर्न करना पड़ेगा तुम्हें. Second quadrant में only sine is positive, tan and cos is negative. So I'll teach you how to get this. But at least you know this. इनकी वैल्यू इसमें y by x नहीं करना, सीधे हमें पता है स्लोप इज दिस. तो we don't need y and x, dy by dx we don't need it. आगे जरूरत पड़ेगी हमें, not now. डायग्राम भी इसके ड्रॉ करके दिखा सकते हैं. 0 का कैसे आएगा, 30 का कैसे आएगा, 90 का कैसे, 135 का डायग्राम कैसे आएगा. ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं. आगे जरूरी नहीं होता ओरिजिन से ही एंगल लेना. यहाँ पे तो ओरिजिन से नहीं है, एंगल इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन. यू कैन टेक इट फ्रॉम ओरिजिन या यू कैन जस्ट एनीवेयर. All right. Shall I move forward? Next. Not done. Sir, Yes. can you show how to draw the diagram? डायग्राम जैसे सपोज 0 डिग्री है या सपोज 45 डिग्री है, तो ये जस्ट लाइन, ये कांस्टेंट है ना, एंगल फिक्स है लाइन के, तो इट इज नॉट चेंजिंग. सपोज 45 है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन लाइक दिस, or you can draw it from here also. All parallel lines will have the same slope. You can just make, ये मैंने 45 के लिए ड्रॉ कर दिया. You have to draw tentative note. यहाँ पे मैं लिख दूं नोट, एक important note. All parallel lines will have same slope. All parallel lines will have same slope. है ना? Whether line is passing through the origin or ahead of that or behind that doesn't matter. तो हमने कोई उसमें तो tan थीटा ही तो लिखा है बस, और कंडीशन क्या लिखी है कि एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स ऑल. तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे. ओनली थिंग, जब हम लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे देन देयर विल बी लिमिटेशंस. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, देन देयर इज लिमिटेशन कि भाई ओरिजिन से पास होगी, जीरो इंटरसेप्ट बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट. तो ऑल दीस थ्री लाइंस विल हैव डिफरेंट इक्वेशंस बट सेम स्लोप. गॉट इट? तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं टेंटेड. आई डोंट वांट टू टेक द स्केल एंड ऑल, ड्रॉ करना है जस्ट रफ डायग्राम. वी डोंट हैव टू गिव दैट मच टाइम, है ना. अपने को रिवाइज करना है पीछे का. वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू रिवाइज, है ना. ज्यादा टाइम नहीं लेना है, होमवर्क में फास्ट करना है. संडे को तुम लोग का टेस्ट भी है सेकंड चैप्टर का. यू आर द टेस्ट ऑफ सेकंड चैप्टर ऑन संडे. टाइम विल बी डिसाइडेड ऑलमोस्ट मॉर्निंग टाइम में ही होगा. जो क्लास टाइम है उससे थोड़ा पहले या बाद में, 1 आवर बिफोर आई थिंक, है ना. आई डोंट रिमेम्बर क्या मैम ने बोला था. 11 to 12 नहीं. ओके, सैटरडे विल कंफर्म. क्लियर? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट सो फार? Okay. Now we, after learning slope and all, now we are going to see the differential calculus. Differential
है ना, कैलकुलस, ये मैथ्स का ब्रांच है। तो ये हमें इट विल हेल्प अस टू डिफाइन, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में सीखना पड़ता है, और स्लोप, स्लोप अभी हमने डिस्कस किया, वी विल सी हाउ इट इज रिलेटेड टू स्लोप ओनली। तो पहले तो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन जो है, सपोज वी हैव द टू एक्स एंड वाई, कुछ पैरामीटर्स है अपने पास, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं। तो अगर y जो है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फंक्शन, है ना, नथिंग टू डू विद दैट अपने जो फंक्शंस होते हैं, है ना, दिवाली एंड ऑल, यहाँ पर ये फंक्शन जो है, मीनिंग जो है फंक्शन का, दो वेरिएबल या मोर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो, x जो है यहाँ पे x सिंगल पावर में है। Okay, let me explain you some more about the function. Suppose your age is 16 years, for example, x is 16 years, and your brother or your sister is elder to you, उसकी एज कितनी होगी, he is elder to you by 2 years, so x plus 2, suppose you are at suppose your age is 16, your brother will have the age 18, है ना, ठीक है, अब suppose after 2 years you will be 18, he will be 20, है ना, like this. So these relations represent something, है ना, some x is the independent variable, y is the dependent variable, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो both have the some relation, ठीक है। तो जैसे volume of the spherical body is depending upon the radius, है ना, r cube, directly proportional to r cube, ऐसा होता है, रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता है। तो लाइक दिस सिचुएशंस वी आर गोइंग टू डील। तो if अच्छा, फंक्शंस कैन बी अलजेब्राइक फंक्शन, है ना, ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कोसाइन, है ना, उनके बीच में रिलेशन हो सकता है, राइट। फंक्शन कैन बी बिटवीन साइन, कॉस एंड ऑल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ फंक्शन ई के टर्म्स में रहते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, विल सी दैट व्हाट इज दैट। लॉग के कुछ फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन आर न्यू फॉर यू, है ना, तुम्हारे लिए थोड़े नए हैं, बट हमें उनको ज्यादा डिटेल में नहीं सीखना है। जस्ट आई विल टेल यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तो वो कैसे चेंज होता है ना, आई विल टेल यू। तो दीस आर सम फंक्शंस वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन। तो ये चार फंक्शन के वी आर गोइंग टू डील विद, ऑलराइट। तो सबसे पहले इसी को ही देखते हैं, ये फंक्शन को। सपोज x में चेंज हो गया, इफ x डेल्टा x इज द चेंज इन x, डेल्टा x इज द चेंज इन x, तो y will also change, suppose your age goes up by 2 years, तो y will also go up by 2 years, ये तो कांस्टेंट है, तो there will be some change, maybe इक्वल चेंज और मे बी मोर चेंज, है ना, ऐसा नहीं है। अगर सपोज हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, कोई फंक्शन स्क्वायर है ना, जैसे सरफेस एरिया होता है ना, a is equal to 4 pi r square, है ना, तो then a will be equal to y, तो y will be changed, suppose x increases by 1, y will be increases by something else, है ना, तो may be unequal change or may be equal change। तो delta x is change in x, so there is y is also changing, y will certainly change, x change हो रहा है तब y change होगा ही होगा, because there is dependent variable, है ना, x के ऊपर डिपेंड। तो रेशियो ऑफ बोथ, इन दोनों का जो रेशियो है, change in y to the change in x is called rate, average rate, it is not rate, average, क्योंकि इंटरवल इज बिगर तो इसलिए एवरेज लिखा जाता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x,
delta y by delta x is called average rate of change of y with respect to x. तो ग्राफ से देख लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है. ओके, तो अगर x इतना चेंज हुआ this much, तो y will be changing this much. यहाँ तो ये चेंज हो गया, y x goes from here to here, y goes from here to here. So that is what is the average rate of change of y with respect to change of. This is also called the slope of the line PQ. PQ का slope हो जाएगा because delta y by delta x हो गया. The slope of line PQ, ठीक है. तो जो रेट है एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है. somebody asked sir it x can decrease also, increase and decrease both, इधर भी आ सकते हैं. Now but we are more interested at ratio of change at particular location. यहाँ पर चाहिए हमें. Can you see the dot? यहाँ पर चाहिए, यहाँ at this point पर. अगर ये देखो, okay, just let me see. यहाँ पे एक पॉइंट मिड पॉइंट पे मिड यहाँ पे भी कर्व के बीच में कहीं पे एक पॉइंट लिया, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है. एक मिनट जस्ट थोड़ा, सपोज हमने कर्व यहाँ पर लिया एक पॉइंट, ठीक है. तो ये कितना चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. ओके, वाई का भी पहले बना लेते हैं फिर लिखते हैं. वाई में भी थोड़ा सा चेंज हो गया इतना, ठीक है. तो ये जो है दिस वन, कैन यू सी, दिस मच इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी एक्स लिखेंगे, और दिस मच इज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, डी वाई. तो वेरी स्मॉल चेंज मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स कितना है देखो, सी है डेल्टा एक्स इज ओके, डेल्टा एक्स कितना हो गया, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. यहाँ से पॉइंट इधर जा रहा है और ये इधर है, दे आर जस्ट क्लोजिंग एट सडन पॉइंट. तो लिमिट यहाँ पे जो लिखा है ना, एल मैथमेटिकल लैंग्वेज है, LIM स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर LIM स्टैंड फॉर लिमिट. किसकी लिमिट, डेल्टा एक्स की. कितनी हो रही, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स जीरो. मतलब ऐसा समझ लो, जीरो का मतलब इफ एक्स इज से 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर. ओके, लेट मी राइट विद डार्क कलर. और x1 है, x2 कितना है, 2.00000001. तो डिफरेंस कितना हो गया, x2 minus x1 is called delta x. That will have the difference 0.00000001. Almost it is tending towards zero. कैसा हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है. ये लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स, यहाँ से देखो दो वैल्यू मैंने लिए, या फिर टाइम के टर्म्स में. सपोज इट इज से 1 o'clock एंड नेक्स्ट मोमेंट पे 1.00000001 o'clock, बहुत कम, वेरी क्लोज. बोथ द टाइम इंटरवल और पोजीशन इंटरवल्स आर वेरी क्लोज. तो उसको ऐसे पढ़ा जाता है, इट इज रेड एज लाइक दिस, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, then ratio of, then this was what average rate tha. This was complete term was average. It converts into instantaneous. It is equal to dy by dx, which is called instantaneous. मतलब rate of change of y with respect to x at any instant, at any point. Rate of change of. It is not average. I have removed the word average. Average word जैसे ही remove हो जाता है physics में, that most of the physical quantities becomes instantaneous. So dy by dx is read as rate of change of y with respect to x. कब, जब डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो. यहां से देखो ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट बनेगा. दैट इज व्हाट इज द लैंग्वेज. दिस इज कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड दिस, LIM स्टैंड फॉर लिमिट. तो एवरेज वैल्यू कन्वर्ट्स इनटू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू dy by dx, which is rate of change of y with respect to x. तो see, it is read, इसको ऐसा पढ़ते हैं, rate of
rate of change of y with respect to x, or we can just read it like this: differentiation of y with respect to x, or derivative of y with respect to x, or slope of the curve at that point. अभी हमने पढ़ा dy by dx is what? Slope. So these are the 5 different way we can. One more is there. dy by dx also इसको ऐसे ओके पहले इतना लिख लो just I'm giving you access to that, right? Just you can note down the points. Any difficulty you ask. If you are any doubt, unmute and ask. Calculus is differential calculus is all about the slope, or all about the instantaneous values at one particular point of time, or at one particular point of location, point of position. Okay. ये जो फंक्शन लिखा है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, जनरल फॉर्म होती है y f of x बोलते हैं, y the function of x. We can have various functions. Okay, just we'll conclude. One more point I'll tell you. Last point जो लिखा था ये था वो. This was the last point. dy by dx is also written as y prime. Y prime मतलब यही होता है dy by dx, मतलब rate of change of y with respect to x ऐसे लिखा जाता है, और it is f prime of x. Some in math में ऐसे भी पढ़ाया जाएगा. So there's a 5 way of writing it. There's 5 way of just defining this. You have rate of change in differentiation, derivative, slope, or y prime, or f prime of x. एक जैसे आर्क सेकंड था ना, आर्क सेकंड में सीखा था ना, 1 आर्क सेकंड, आर्क मिनट था वो, मिनट ऑफ आर्क है ना, वैसे यहाँ भी प्राइम. यहाँ पे मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन और स्लोप. तो दिस इज द 5 वे टू राइट द 5 names of dy by dx. Mostly we will be calling this differentiation of y with respect to x. Generally, mostly it is termed as differentiation of y with respect to x. That's all today, this much only. Numericals in tomorrow will be doing all this. इसकी जो प्रॉब्लम है कैसे हम लोग रिलेट करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, विल लर्न टुमारो. पहले फार्मूला सीखेंगे.
If anybody has any difficulty, just unmute and ask. Others, those who are written, those who are completing can leave the meeting. Then I will close. So can you explain the graph again? Is this noted? This much? I'll Yes. explain you. Just देखो, suppose कोई ये function जो है ना, ये जो graph है ना, this may not be for this function है ना. ये graph ऐसे function का आता है, somewhere y is equal to x square ऐसा कुछ. इसका तो स्ट्रेट लाइन आएगा ये वाले फंक्शन का. तो यहाँ पे हमने जस्ट फंक्शन का एग्जांपल लिया है और ग्राफ जनरल लिया है. इट इज बिकॉज इट इज गोइंग अप वेरी फास्ट है ना. इसका जो है रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट. एक मिनट है, जस्ट होल्ड ऑन. तो इट इज जस्ट क्लाइंबिंग अप है ना. इफ वी चेक द नेक्स्ट टाइम इंटरवल, सॉरी इतना टाइम इंटरवल में इतना y बढ़ा, नेक्स्ट इक्वल नॉट टाइम इंटरवल, x इंटरवल. तो नेक्स्ट x का इंटरवल में y इज चेंजिंग फर्दर मोर. तो ये कांस्टेंट नहीं है, रेशियो इज नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट कब होगा? इफ वी हैव द स्ट्रेट लाइन, देन इट विल बी कांस्टेंट लाइक दिस. तो whatever the ratio is there, it may be constant or may not be constant, but ratio is called average rate of change of y with respect to x. But graph is changing like this. यहाँ से ऐसे जा रहा है. तो if we have the some relation है ना, some relation between x and y, we can draw the graph. That's what we are going to do tomorrow or next classes में. हम लोग ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे. Suppose if I give you the graph like this, नहीं, इक्वेशन लाइक दिस, ये डिफरेंशिएशन चलेगा पहले 2-3 क्लास में. देन आई विल हैव द प्रैक्टिस ऑफ द ग्राफ हियर. क्वाइट अ लॉट वी हैव टू कवर इन दिस. जैसे ये ड्रा द ग्राफ, तो इस तरह से ग्राफ ड्रा करेंगे. ये इक्वेशन है तो इसका कुछ और आएगा. और जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है दैट विल बी फॉर लाइक दिस ग्राफ. ऐसा इसका ग्राफ ऐसा आता है. टेबल बना लेंगे. ओके, विल मेक द टेबल एंड विल हैव सम पॉइंट्स लाइक दिस. ऐसा ग्राफ है. x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y4 आ जाएगा. तो विल जस्ट मार्क द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स लिख के और ग्राफ ड्रा करेंगे. दैट इज हाउ ग्राफ इज ड्रॉन. ठीक है. तो डिपेंड करता है. जैसे एरिया एंड रेडियस का ग्राफ है, रेडियस डबल हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4, एरिया सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स. So that's how graph comes. We will have the practice, not now. ठीक है. तो just I have drawn the graph without writing the relation, and we have seen delta y and delta x के बीच में relation देखा. यहाँ पे delta x change हो रहा तो delta y change हो रहा. आगे चल के कुछ और. तो ratio, this ratio may change or may remain constant. Got the sum feel of the graph? किसका डाउट था? So it's clear. तो I hope you have drawn the graph. 10th में कुछ ग्राफ ड्रॉ किए, x and Yes. y का रिलेशन दिया. तो similar to that here also, maybe curved line. Sometime we may get the circle, sometime we get the this type of graph, sometime we may get the straight line. So like this we'll draw the graph. ठीक है. Okay, sir. Okay, any other doubt? तो नोट कर लिया था. Okay, just I am showing you again this last part of the writing part है. Those who are noted can leave if they don't have any doubt. Then I will close the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yes. Anybody? Anything? Any Kartikeya, you want to ask anything? Okay. Shall I close the meeting?